Dear students, we have previously in the last lecture started with the organelle, that is nucleus. Before that we have completed the organelles which were responsible for movement, and that were cilia and flagella, as well as an organelle which is associated with the process of cell division in the animal cells, and that was centriole. We had studied that both these structures were very similar to each other, in which there was arrangement of the microtubules in the periphery and a proteinaceous hub in the center. So we have discussed that how there will be the function or structure of the centriole as well as cilia flagella. Now we move on to the next topic, that is nucleus. We have so far discussed that the nucleus is the organelle which is one of the most important organelle for the cell. Just like the body has the working of the brain for all the activities, the cell has a nucleus which regulates all the activity of the cell. So this nucleus, which is very essential organelle, we have discussed that what does an interphase nucleus include? An interphase nucleus means when the cell is present in a non-dividing stage. When the cell is present in a non-dividing stage, at this time the nucleus will be having four components. These components are nuclear envelope, the second component was nucleoplasm, the another component is chromatin, and the fourth one is nucleolus. Both chromatin and the nucleolus are a part of nucleoplasm. We had discussed this much in the previous class. Now we are moving on to the nuclear membrane or the nuclear envelope. We said that the nuclear envelope is going to be a double layered structure. The outer wall or the outer membrane is continuous with endoplasmic reticulum. What is the outer membrane? We said that it is a double membrane structure. मतलब ये जो दोनों membrane है, एक होगी outer membrane और एक होगी inner membrane. तो ये जो outer membrane है, that is going to be continuous with the endoplasmic reticulum, which has ribosomes on its surface. So it will be associated with which organelle? Endoplasmic reticulum. It is even said that at the time of cell division and nucleus division, जब nucleus divide होता है, तो जो नए nucleus की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप होती है, वो भी मेम्ब्रेन डेवलप करने में हेल्प करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज इट इज ऑलरेडी अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विच इज कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सो इट कैन हेल्प इन द न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्मेशन ऑल्सो. तो यहाँ पे ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके सरफेस पे क्या होगा? राइबोसोम्स. सो इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस. इनर मेम्ब्रेन जो होगी दैट इज गोइंग टू बी स्मूथ. इनर मेम्ब्रेन इज गोइंग टू बी स्मूथ एंड कंटिन्यूअस. सो न्यूक्लियर एनवेलप separates. What does it separate? Nucleoplasm from cytoplasm. तो किसके बीच का बैरियर होगा ये? एक न्यूक्लियोप्लाज्म और एक है साइटोप्लाज्म. मैंने कहा था दैट न्यूक्लियस के अंदर जो पूरी ही मैट्रिक्स प्रेजेंट है, उस मैट्रिक्स को कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म.
तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करने वाली एक डिमार्केटिंग वॉल हो जाएगी क्या, न्यूक्लियर एनवलप. Another thing is that at places the outer and inner membrane will possess small openings which are known as न्यूक्लियर पोर्स. मतलब ऐसे पॉइंट्स, ऐसी प्लेसेस होंगी जहां पे क्या होगा, दैट द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन विल बी कंटिन्यूअस विथ ईच अदर एंड हियर इट विल गिव राइज to a small opening like structure which is known to be the nuclear pore. मतलब ये outer membrane है, ये inner membrane है और ये क्या है, nuclear pore है. तो nuclear pore जो होता है, it helps in transport of proteins and RNA in either डायरेक्शन. मतलब अगर प्रोटीन्स या आरएनए मेनली न्यूक्लियस के अंदर ही सिंथेसाइज होता है, तो आरएनए को अगर न्यूक्लियस के बाहर मतलब साइटोप्लाज्म में भेजना है या तो फिर बाहर से कोई प्रोटीन को अंदर लेना है इनटू द न्यूक्लियोप्लाज्म, तो ये ट्रांसपोर्ट, ये एक्सचेंज होगा विद द हेल्प ऑफ द न्यूक्लियर पोर्स. तो ये रहेगा function of nuclear pores. What is the function? Transporting the material across nucleoplasm and the cytoplasm. So that will be the function of the nuclear pores. और एक चीज मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की, पर मैंने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बता दिया था that the space between the outer and inner membrane is known as periplasmic space and this space is 10 to 50 नैनोमीटर in its dimension. तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसे कहेंगे पेरीप्लाज्मिक स्पेस. ठीक है, वो लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बात हो चुकी है. आगे हम बढ़ते हैं. तो न्यूक्लियर एनवलप जो है, इसके बारे में हमने बात कर दी कि वो ट्रांसपोर्ट, एक्सचेंज सब में मदद करेगा. इट इज हैविंग पोर्स. अब हम आगे बात करते हैं अबाउट व्हाट इज प्रेजेंट. नॉर्मली एक सेल जो होता है उसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं, एक ही न्यूक्लियस होता है. पर ऐसे भी सेल्स होते हैं which have more number of nucleus. There are cells which are having more number of nucleus. So some cells have only one nucleus and they are known as uninucleate. सम तो नहीं कह सकते, यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द सेल्स. मोस्ट ऑफ द सेल्स कैसे होंगे, यूनिन्यूक्लिएट. मतलब कितने न्यूक्लियस होते हैं, एक ही न्यूक्लियस होता है. बट वी कैन से दैट सम सेल्स हैव नो न्यूक्लियस एट ऑल. तो नो न्यूक्लियस, कोई भी न्यूक्लियस ही ना हो, ऐसा कौन सा सेल है, तो दैट इज मेमेलियन आरबीसी. यहाँ पे हम हर बार मेमेलियन इसीलिए लिखते हैं क्योंकि दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उनके आरबीसीज में न्यूक्लियस होता है, इसलिए हम सिर्फ मैमल्स की बात कर रहे हैं कि मैमल्स के आरबीसीज होते हैं या तो फिर फ्लोएम में जो सीव ट्यूब्स होते हैं, सीव ट्यूब सेल्स, इनमें एक भी न्यूक्लियस नहीं होता. ऐसे भी सेल्स होते हैं जिनमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, जिसे हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस. क्या कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड. या तो फिर उसे ऐसा कहा जाता है सिंक्टियम, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस. एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. और आपने ऐसा ऑलरेडी पढ़ा है, तो आप याद करिए कि कौन से ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है. मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे देती हूँ दैट इट इज इन द केस ऑफ सर्टेन फंजाई.
आपने पढ़े हैं ऑलरेडी ऐसे फंगस जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस होते हैं। तो कई सेल्स में एक न्यूक्लियस, कई सेल्स में नो न्यूक्लियस और कई सेल्स में मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी होते हैं। आगे हम बात करते हैं अबाउट द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म और यू कैन से न्यूक्लियर मैट्रिक्स। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? एक होगा क्रोमैटिन विच इज ऑलरेडी अ न्यूक्लियो प्रोटीन, मतलब न्यूक्लिक एसिड्स प्लस प्रोटीन, डीएनए प्लस प्रोटीन, उसे हम कहेंगे क्रोमैटिन। और दूसरा कंपोनेंट जो है दैट इज गोइंग टू बी न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो पूरी एक मैट्रिक्स लाइक मटेरियल है। उसमें क्रोमैटिन मतलब जेनेटिक मटेरियल है अलोंग विथ प्रोटीन्स, और सेकंड उसमें है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जब एक से ज्यादा हो तब बोला जाता है, सिंगुलर में इसे कहा जाता है न्यूक्लियोलाई। तो न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई मल्टीपल ऐसे कहा जाता है। तो न्यूक्लियोलस जो होता है इट इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर present in nucleoplasm. Non-membrane bound structure. So contents of nucleolus are continuous with rest of nucleoplasm. मतलब न्यूक्लियोलस जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, पर उसके सराउंडिंग कोई मेम्ब्रेन या बाउंड्री नहीं होती, इसलिए उसका जो कंटेंट है इट इज कंटिन्यूअस विद द क्रोमैटिन इटसेल्फ। जस्ट डिफरेंस यही है कि वो एक ऐसी जगह है जहां पे क्रोमैटिन बहुत ही ज्यादा डेंस हो चुका है। मतलब अगर ये न्यूक्लियस है तो यहाँ पे हर जगह पे क्रोमैटिन प्रेजेंट है। दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल डायग्राम फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ओके। तो यहाँ पे हर जगह पे क्या प्रेजेंट है? क्रोमैटिन इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स, क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट है। पर एक ऐसी भी जगह हो सकती है जहां पे वो क्रोमैटिन बहुत ही ज्यादा डेंस फॉर्म में एग्रीगेट हो गया हो, और ऐसे डेंस फॉर्म में जब एग्रीगेट हो जाता है तो उसे कहा जाता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, सो इसीलिए मैंने लिखा है दैट contents of nucleolus are continuous with the rest of the nucleoplasm. Nucleolus का main function, the function of nucleolus is to synthesize ribosomal RNA, जिसे हम कहते हैं rRNA। हमने पढ़ा है कि राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ आरएनए प्लस प्रोटीन्स। तो राइबोसोम्स के अंदर जो आरएनए है वो आरएनए सिंथेसाइज कहाँ पे होता है? न्यूक्लियोलस में, और फिर सेल के बाहर न्यूक्लियस के बाहर भेजा जाता है थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स। तो ये स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज टू सिंथेसाइज राइबोसोमल आरएनए। जो बहुत ही ज्यादा एक्टिव सेल्स होते हैं उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियोलस होते हैं। लेस एक्टिव सेल्स में एक न्यूक्लियोलस हो सकता है, पर ज्यादा एक्टिव सेल्स में एक से ज्यादा न्यूक्लियोलस होते हैं। आगे हम बात करते हैं अबाउट द क्रोमोसोम्स। तो आगे हम बात करते हैं दैट व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन। अभी हमने बात की दैट ड्यूरिंग इंटरफेस the chromatin is present as a network and it is made up of
डीएनए प्लस प्रोटीन्स। इंटरफेस के वक्त क्या हुआ है कि ये जो पूरा ही जेनेटिक मटेरियल है जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं, वो क्रोमेटिन एक थ्रेड लाइक क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं जो पूरे ही न्यूक्लियोप्लाज्म में फैले हुए हैं। सो इट इज रिटन एज देयर इज एन इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑब्जर्व्ड एंड दिस नेटवर्क इज ऑफ व्हाट? डीएनए अलोंग विद प्रोटीन्स। Which proteins am I talking about? These proteins are known as histone proteins and non-histone proteins. The name of the proteins are histone proteins and non-histone proteins. But at the time of cell division, at the time of cell division, the chromatin fibers condense to form the structure which is called chromosomes. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप समझिए। क्या लिखा है कि इंटरफेस के वक्त जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, जो डीएनए प्लस प्रोटीन फाइबर्स हैं, ये कैसे प्रेजेंट होंगे? एक इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क की तरह पूरे ही न्यूक्लियोप्लाज्म में स्प्रेड हो गए हैं। बट एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल को डिवाइड होने का टाइम आ रहा है, तब ये क्रोमेटिन फाइबर्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहते। इंस्टेड क्या होने लगते हैं? कंडेंस होने लगते हैं, या तो हम कह सकते हैं कॉम्पैक्ट होने लगते हैं। वो इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं that they acquire typical shape and these structures are known as chromosomes. We already know that there are 46 chromosomes in our cells. In our cells, मतलब हम कह सकते हैं that is 23 pairs of chromosomes are present. हमारे एक सेल में कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं? 46 क्रोमोसोम्स, मतलब 23 पेयर्स। ठीक है। और एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दैट जब हम बोल रहे हैं 46 क्रोमोसोम, तो 46 क्रोमोसोम्स को मिला के हमारा एक डीएनए बनता है। एंड डीएनए ऑफ अ सेल इज 2 मीटर्स लॉन्ग। ये आपको सुनने में बहुत ही अलग लगेगा कि हमारे एक सेल के अंदर कितना लंबा डीएनए है? 2 मीटर लॉन्ग डीएनए। तो इमेजिन कि ये जब फाइबर के फॉर्म में प्रेजेंट है और जब ये कंडेंस होने वाला है, तो कंडेंस फाइबर के फॉर्म में होता है तो हम उसे कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स, और कंडेंस हो जाता है तो हम उसे कहते हैं क्रोमोसोम। हर एक बार जब सेल डिवाइड हो जाता है तो वापस ये क्रोमोसोम्स क्या बन जाते हैं? क्रोमेटिन फाइबर्स। Again when the cell needs to divide, the chromatin fibers changes into chromosome. So this interchange keeps on continuing in the cell till the cell division has to occur. अब हम आगे बढ़ते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में। तो क्रोमोसोम्स जो हैं, they are of, chromosomes are of 4 types based on position of centromere. अब हम समझेंगे सेंट्रोमियर क्या है। इसे हम कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। अगर आपने पहले कभी भी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर या डायग्राम देखा हो तो आपने एक चीज देखी होगी दैट क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है। तो क्रोमोसोम्स जो है वो एक्चुअली थिन थ्रेड क्रोमेटिन ही है, पर क्या हो चुका है? वो बहुत ही ज्यादा कंडेंस हो चुका है। तो ये जो क्रोमोसोम है उसमें आप एक ऐसा पॉइंट देखोगे जहां पे वो बहुत ही ज्यादा नैरो है। एक्चुअली हमने यहाँ पे ऐसे सर्कल जैसा बनाया है, बट एक्चुअली दिस इज द प्लेस वेयर द क्रोमोसोम्स आर वेरी नैरो एंड दिस नैरो पॉइंट इज नोन एज द सेंट्रोमियर। क्या कहा जाता है उसे? सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर की कौन सी पोजीशन है
उसके बेसिस पे क्रोमोसोम्स के कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं। मतलब सेंट्रोमियर बीच में लोकेटेड है, सेंट्रोमियर थोड़ा साइड पे है, सेंट्रोमियर एकदम एंड पे है। कहाँ पे ये सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन लोकेटेड है, उसके बेसिस पे 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो सबसे पहली हम बात करते हैं, और हाँ, इसे कहा जाता है सेंट्रोमियर और इन्हें कहा जाता है आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स। एक्चुअली ये एक जो है इतना, इसे कहा जाता है क्रोमैटिड्स। व्हाट इट इज कॉल्ड? क्रोमैटिड। तो एक क्रोमोसोम में कितनी क्रोमैटिड्स होती है? 2 क्रोमैटिड्स है। वापस एक बार सुन लीजिए, ये जो पूरा स्ट्रक्चर ऐसा ही आपको पूरा दिख रहा है, दिस इज 1 chromatid and this is going to be the second chromatid. So a chromosome will be having either 1 or 2 chromatids, but most of the chromosomes will be having 2 chromatids if it is not dividing at that time. तो 2 chromatids होती हैं, और ये दो जो है इधर और इधर, तो इन्हें क्या हम कहते हैं? इन्हें कहते हैं आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या कहते हैं? आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। मतलब पूरे को कहा जाता है क्रोमैटिड, और ये दोनों मतलब सेंट्रोमियर के एक तरफ जो दोनों है, इन दोनों को कहते हैं आर्म्स, इन दोनों को कहते हैं आर्म्स। पता चल रहा है? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं 4 टाइप के क्रोमोसोम्स की। सबसे पहला टाइप है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक मतलब इफ द सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट, centromere is very centrally located, resulting into arms of equal length, मतलब दोनों ही तरफ जो आर्म्स है उनकी लेंथ कैसी रहेगी? इक्वल। तो उसे क्या कहा जाता है? मेटा मतलब सेंटर। सेंट्रोमियर जो है वो एकदम सेंटर में ऐसे लोकेटेड है कि दोनों तरफ जो आर्म्स है उनकी लेंथ क्या रहती है? सेम। तो ऐसे क्रोमोसोम को कहा जाता है मेटासेंट्रिक। फिर सेकेंडली आ जाता है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक मतलब the centromere is located slightly away from the center. Centromere is slightly away from center. So 2 arms are slightly shorter and 2 are slightly longer. सब मेटासेंट्रिक मतलब सेंट्रोमियर एकदम सेंटर में नहीं है, थोड़ा कहां पे? सेंटर से थोड़ा दूर। इसीलिए 2 जो आर्म्स हैं, ये वाले 2, वो कैसे हैं? थोड़े छोटे हैं, और दूसरे 2 जो आर्म्स हैं वो थोड़े लंबे हैं। उसे कहा जाता है सब मेटासेंट्रिक। फिर थर्ड वन आ जाता है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक मतलब centromere located away from center. Centromere is away from center. 2 arms extremely small and 2 are extremely long. सेंट्रोमियर इज स्टिल लोकेटेड अवे, और ज्यादा दूर है। इसकी वजह से 2 जो हैं आर्म्स वो बहुत ही छोटे हैं और 2 आर्म्स बहुत ही लॉन्ग है, तो उसे कहा जाता है एक्रोसेंट्रिक। और लास्टली हम बात करते हैं टिलोसेंट्रिक की।
तो टेलोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर जो है इट इज लोकेटेड एट द एंड. सेंट्रोमियर इज लोकेटेड एट द एंड. इसलिए दो आर्म्स दिख ही नहीं रहे, सिर्फ कितने आर्म्स दिख रहे हैं? दो ही आर्म्स दिख रहे हो, ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. जरूरी नहीं है कि चारों एक साथ ही दिखे. Some of the chromosomes will be acrocentric, some of the chromosomes will be submetacentric like this. ये वेरिएबल रहता है. और एक चीज मुझे बतानी थी that some of the chromosomes have presence of secondary constriction. मतलब ये हो गया टेलोसेंट्रिक तक हमने बात कर ली. अब हम बात कर रहे हैं कि थोड़े ऐसे भी क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन तो क्या है? सेंट्रोमियर है. पर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अलावा उनके पास सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होता है. सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन मतलब दूसरी बार नैरोइंग देखने को मिलता है. दूसरी बार ऐसी जगह है जहां पे वो थोड़ा नैरो हो चुका है और इस जगह को कहा जाता है सैटेलाइट रीजन. क्या कहा जाता है? सैटेलाइट रीजन. ये सैटेलाइट रीजन ऐसी जगह होती है जहां पे ऐसा न्यूक्लिक एसिड्स की सीक्वेंस होती है जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेशल हो. मतलब द सैटेलाइट रीजन इन रिपीटेड सीक्वेंसेस होती है जो अभी आप थोड़ा नहीं समझ पाओगे कि कैसी सीक्वेंस होती है, पर सिर्फ अभी के लिए याद रखो कि इसमें ऐसा जेनेटिक मटेरियल है विच इज डिस्टिंक्ट इन एवरी इंडिविजुअल. सैटेलाइट रीजन जो है वो स्पेशल होता है एक इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल के लिए. मतलब सब में सैटेलाइट रीजन सेम होता नहीं है. तो ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को कहा जाता है सैटेलाइट, जिसके बारे में आगे आप जब जेनेटिक्स के चैप्टर पढ़ोगे तो आपको प्रिसाइसली पता चलेगा कि सैटेलाइट रीजन से क्या हेल्प होता है. दूसरी एक बात कि सैटेलाइट रीजन फॉरेंसिक साइंस में बहुत मदद करता है टू फाइंड क्रिमिनल्स, टू फाइंड पैरेंटल इश्यूज. ऐसी सब जो चीजें होती है उसमें जब डीएनए चेक होता है तो सबसे ज्यादा हेल्प क्या करता है? सैटेलाइट रीजन, जो हर एक इंडिविजुअल का स्पेसिफिक होता है. तो ये हमने बात कर ली क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियस के बारे में. इसके अलावा एक ऐसा ऑर्गेनल है माइक्रोबॉडीज. जो माइक्रोबॉडीज आपकी टेक्स्ट बुक में ज्यादा इलॉबरेटेड नहीं है, पर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा ब्रीफ अप कर देती हूँ. माइक्रोबॉडीज जो होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में इंक्लूड होता है पेरोक्सीसोम्स और ग्लायोक्सीसोम्स. मैं यहाँ पे वर्ड आपके लिए लिख देती हूँ, पेरोक्सीसोम्स एंड ग्लायोक्सीसोम्स. पेरोक्सीसोम्स एक ऐसा ऑर्गेनल है जो पेरोक्साइड का सिंथेसिस करता है. मतलब हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिक मटेरियल एंटर हो रहा है जैसे कि फिनॉल्स या फॉर्माल्डिहाइड, ऐसे जो सब्सटेंसेस कभी भी एंटर होते हैं तो इन्हें न्यूट्रलाइज करना, ब्रेक करना, ये काम रहता है पेरोक्सीसोम्स का. एंड पेरोक्सीसोम्स आर एसोसिएटेड विद ईआर और माइटोकॉन्ड्रिया. और प्लांट्स में भी ये पेरोक्सीसोम्स प्रेजेंट होते हैं और वहां पे ये एक फंक्शन करते हैं जिसे कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन. क्या कहते हैं? फोटो रेस्पिरेशन. तो ऐसी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी पेरोक्सीसोम की है. ग्लायोक्सीसोम्स जो होते हैं वो फैटी एसिड का ब्रेकडाउन करते हैं. वो भी एक ऐसे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड्स. तो ये दोनों थोड़ा माइक्रोबॉडीज में इंक्लूड होता है जो अभी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. तो आप अभी के लिए न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स और माइक्रोबॉडीज आपकी टेक्स्ट बुक में से आप देख लीजिएगा. इट इज नॉट मच एलॉबरेटेड, पर इतना याद रखना कि माइक्रोबॉडीज में क्या इंक्लूड होता है? पेरोक्सीसोम्स और ग्लायोक्सीसोम्स.